اچھا، کبھی آپ نے کسی کمپنی کا انکم سٹیٹمنٹ دیکھا ہے اور سوچا ہو کہ بھئی یہ ساری لائنیں یہ آخر کہہ رہی ہیں؟ ہاں، اور اس سے بھی بڑا سوال جی، کہ کمپنی تو منافع میں ہے لیکن مالک کہتا ہے جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل آج ہم اسی مالیاتی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا اسکرپٹ ہے جو انکم سٹیٹمنٹ کو سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہمارا مشن ہے اس کی کہانی کو بالکل سادہ زبان میں سمجھنا۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انکم سٹیٹمنٹ صرف نمبرز کا ایک صفحہ نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ کسی بھی کمپنی کی مالی کارکردگی کی کہانی بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ اسکرپٹ میں بھی حوالہ ہے، IS-1 کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس کو ظاہر کرتا ہے، مطلب ایک سال میں اس نے کیسا کام کیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ کہانی ہے تو سب سے پہلے اس کا ڈھانچہ سمجھنا ہوگا۔ یہ اسٹیٹمنٹ، جسے پروفٹ اینڈ لاس یا P&L بھی کہتے ہیں، یہ اوپر سے نیچے تک کیسے ترتیب دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک بہت منطقی بہاؤ ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے سب سے اوپر سے، ریونیو یعنی آمدنی سے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سے آپ کاسٹ آف سیلز یعنی وہ اخراجات جو براہ راست چیز بنانے پر آئیں وہ نکالتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے گراس پروفٹ۔ گراس پروفٹ۔ اس کے بعد کاروبار چلانے کے جو دوسرے خرچے ہیں، آپریٹنگ ایکسپنسز، وہ نکالے جاتے ہیں تو آپریٹنگ پروفٹ سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ اور آخر میں، بالکل آخر میں، قرضوں پر سود اور حکومتی ٹیکس ادا کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ ہے ہمارا نیٹ پروفٹ۔ زبردست۔ تو چلیں اسکرپٹ کی دودھ والی کمپنی کی مثال کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلی لائن ہے ریونیو۔ اسکرپٹ کہتا ہے کہ کمپنی نے 1,00,000 لیٹر دودھ 200 روپے فی لیٹر کے حساب سے بیچا، تو آمدنی ہو گئی 2 کروڑ روپے۔ جی، بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ آمدنی اسی وقت ریکارڈ ہو جاتی ہے جب سودا طے ہو جاتا ہے، یا جب گاہک اصل میں پیسے دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسکرپٹ میں IFRS 15 کا ایک بہت اہم حوالہ ہے۔ اچھا؟ اکاؤنٹنگ کے اصولوں کے مطابق آمدنی نہ تو صرف معاہدہ ہونے پر ریکارڈ ہوتی ہے اور نہ ہی پیسے ملنے پر۔ یہ تب ریکارڈ کی جائے گی جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، یعنی جب دودھ گاہک تک پہنچا دیا جائے۔ تو جب ڈیلیوری ہو گئی تب؟ بالکل، اسے پرفارمنس آبلیگیشن کی تکمیل کہتے ہیں۔ ایک سرمایہ کار کے لیے یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا کمپنی کی آمدنی وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے یا ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ کمپنی کی صحت کا پہلا اشارہ ہے۔ سمجھ گیا۔ تو ذمہ داری پوری ہوئی اور 2 کروڑ کی آمدنی ریکارڈ ہو گئی۔ اب کہانی میں پہلا خرچہ آتا ہے، کاسٹ آف سیلز۔ جی، یعنی فروخت کی لاگت۔ ہماری مثال میں یہ 1,40,00,000 روپے ہیں۔ اور اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں وہ تمام اخراجات شامل ہیں جو براہ راست اس 1,00,000 لیٹر دودھ سے جڑے ہیں، جیسے کسانوں سے دودھ خریدنا، جانوروں کی خوراک کا خرچ، پیکیجنگ کا سامان، فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کی تنخواہیں۔ سادہ الفاظ میں یہ وہ لاگت ہے جس کے بغیر وہ پروڈکٹ وجود میں ہی نہیں آ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو 2 کروڑ کی آمدنی میں سے 1,40,00,000 کے یہ براہ راست اخراجات نکال دیں تو ہمارے پاس بچے 60,00,000 روپے۔ اسکرپٹ اسے کہتا ہے گراس پروفٹ، مجموعی منافع۔ میں نے تو ہمیشہ اسے بس ایک درمیانی سی رقم سمجھا ہے۔ کیا اس ایک نمبر میں کوئی گہری کہانی چھپی ہے؟ بہت گہری کہانی ہے۔ گراس پروفٹ کمپنی کی بنیادی منافع بخشی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ 2 اہم چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلی، اس کی قیمت مقرر کرنے کی طاقت یعنی پرائسنگ پاور، اور دوسری، اپنے براہ راست اخراجات پر اس کا کنٹرول۔ اچھا، اس کو تھوڑا مزید آسان کریں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 کمپنیاں ایک ہی چیز بیچ رہی ہوں، دونوں کی آمدنی بھی برابر ہو، لیکن ایک کا مجموعی منافع دوسرے سے دگنا ہو؟ بالکل ممکن ہے، اور یہ ایک بہترین مثال ہے۔ فرض کریں 2 دودھ کمپنیاں ہیں، دونوں نے 2 کروڑ کا دودھ بیچا۔ کمپنی اے کا گراس پروفٹ 60,00,000 ہے، جبکہ کمپنی بی کا صرف 30,00,000۔ آدھا۔ جی، یہ ہمیں فوراً بتاتا ہے کہ یا تو کمپنی اے اپنا دودھ مہنگا بیچنے کی صلاحیت رکھتی ہے، شاید اس کی برانڈنگ بہتر ہے، یا پھر وہ اپنے اخراجات کمپنی بی سے زیادہ مؤثر طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے۔ سمجھ گیا۔ اسی لیے انویسٹرز کے لیے یہ ٹپ دی گئی ہے کہ ہمیشہ کمپنی کے گراس مارجن کا موازنہ اسی انڈسٹری کی دیگر کمپنیوں سے کرنا چاہیے۔ واہ، یہ تو واقعی کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔
تو 60 लाख का मजमूई मुनाफा तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ दूध बनाने और बेचने की कहानी है। असल कारोबार चलाने में तो और भी बहुत खर्चे होते होंगे। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यही कहानी का अगला हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे सेल्स टीम की तनख्वाहें, दफ्तर का किराया। बिल्कुल, ये वो तमाम अखराजात हैं जो कारोबार को जिंदा रखने और चलाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन बराह रास्त 1 लीटर दूध बनाने से नहीं जुड़े। हमारी मिसाल में ये 30 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 60 लाख था, बिल्कुल। इसमें से ये 30 लाख के ऑपरेटिंग अखराजात भी निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचे 30 लाख रुपए। स्क्रिप्ट इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है, या ईबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ, ईबिट। लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट में एक दावा है जिसने मुझे चौंका दिया कि ये शायद इनकम स्टेटमेंट का सबसे अहम नंबर है। क्यों भाई, ये तो बस एक और दरमियानी नंबर लगता है। ये एक बहुत अहम सवाल है। इसे सबसे अहम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी के बुनियादी कारोबार, उसके कोर बिजनेस की सेहत को बिल्कुल साफ शफ़ाफ अंदाज में दिखाता है। अच्छा। ये नंबर हमें ये कहानी सुनाता है कि अगर कंपनी पर कोई कर्ज ना होता और उसे कोई टैक्स अदा ना करना पड़ता तो वो अपने बुनियादी काम से कितना पैसा कमा रही होती। ये उसके बिजनेस मॉडल की असल ताकत है। लेकिन एक मिनट, क्या ये गुमराह कुन नहीं हो सकता? मतलब अगर किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो, जो आजकल आम है, तो उसका ईबिटा तो बहुत अच्छा नजर आएगा, लेकिन सूद की अदायगी के बाद तो शायद कुछ बचेगा ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पर हाथ रखा है। देखें, ये पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन ये तस्वीर का एक बहुत अहम रुख दिखाता है। अच्छा। ये एक ऑपरेटिंग मैनेजर के लिए बेहतरीन मेट्रिक है, क्योंकि उसका काम कारोबार को मौसर तरीके से चलाना है। कर्ज लेना या टैक्स की मंसूबाबंदी करना इसके दायरे कार से बाहर है। लेकिन एक सरमायाकार के लिए आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये सिर्फ कहानी का आगाज है। ठीक है, ये नुक्ता वाज़ेह हुआ। तो अब हम कहानी के इख्तिताम के करीब पहुंच रहे हैं। हमारे पास 30 लाख का ऑपरेटिंग मुनाफा है। जी। इसके बाद 2 मजीद बड़ी कटौतियां बाकी हैं, फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स। जी, फाइनेंस कॉस्ट वो लागत है जो कंपनी कर्ज लेने पर अदा करती है, जैसे बैंक के कर्ज पर सूद। उसके बाद हुकूमत को दिया जाने वाला कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो हमारी मिसाल में क्या हुआ? हमारी मिसाल में 30 लाख के ऑपरेटिंग मुनाफे में से 10 लाख रुपए फाइनेंस कॉस्ट और 5 लाख रुपए टैक्स निकल गए। तो आखिर में क्या बचा? आखिर में कंपनी के पास 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट यानी खालिस मुनाफा बचता है। ये वो मशहूर बॉटम लाइन है जिसका सब जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट में एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आहा लम्हा है। वो ये कि प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश। बिल्कुल। यानी 15 लाख का मुनाफा कमाने का मतलब ये नहीं कि कंपनी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए मौजूद हैं। सच कहूं तो ये बात मुझे हमेशा उलझा देती है। ये कैसे मुमकिन है? ये अकाउंटिंग की एक बुनियादी हकीकत है और इसे समझना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस पर काम करती है, कैश बेसिस पर नहीं। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आमदनी तब रिकॉर्ड होती है जब वो कमा ली जाए, यानी जब दूध डिलीवर हो गया, ना कि जब नकद वसूल हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारी दूध वाली कंपनी ने 2 करोड़ का दूध बेचा और उसे आमदनी में लिख लिया, लेकिन हो सकता है कि उसके बड़े सुपर स्टोर वाले ग्राहक ने कहा हो कि मैं पैसे 3 महीने बाद दूंगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हो सकता है कंपनी को अपने किसानों को फौरी नगद अदायगी करनी पड़ी हो। नतीजा क्या निकला? कागज पर मुनाफा, लेकिन बैंक अकाउंट खाली। जी, कागज पर तो कंपनी 15 लाख के मुनाफे में है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में पैसे आने की बजाय उल्टा कम हो गए हैं। मुझे एक टेक्सटाइल कंपनी याद है जिसका नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा था, सब बहुत खुश थे। अच्छा। लेकिन उनका कैश फ्लो मनफी था। जब हमने गहराई में देखा तो पता चला कि वो अपने तमाम बड़े खरीदारों को 120 दिन का उधार दे रहे थे। वो मुनाफा तो कमा रहे थे, लेकिन नकद रकम की कमी की वजह से दिवालिया हो गए। अरे बाप रे! तो एक कंपनी लफ्जी तौर पर मुनाफा कमाते कमाते दिवालिया हो सकती है? ये तो आंखें खोल देने वाली बात है। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना भी उतना ही जरूरी है। वो दोनों मिलकर ही पूरी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, तो अब जबकि हमने ये कहानी पढ़ना सीख लिया है,
स्क्रिप्ट में एक बहुत दिलचस्प तफरीक की गई है कि एक सरमायाकार और एक कारोबारी मालिक दोनों इस कहानी को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। एक सरमायाकार को क्या देखना चाहिए? देखें, एक सरमायाकार बाहर से कंपनी को देख रहा होता है, इसलिए उसे बड़े रुझानात यानी ट्रेंड्स पर तवज्जो देनी चाहिए। वो ये सवाल पूछता है, क्या आमदनी में साल ब साल इजाफा हो रहा है? ठीक है। क्या मुनाफे के मार्जिन जैसे ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन मुस्तकिम है या कम हो रहे हैं? और क्या कंपनी की मालियाती लागत यानी उसके कर्जों पर सूद काबू में है? वो कंपनी की तवील मुद्दती सेहत देखना चाहता है। और दूसरी तरफ एक कारोबारी मालिक जो कंपनी के अंदर बैठा है, उसके लिए ये स्टेटमेंट क्या मायने रखता है? कारोबारी मालिक के लिए ये स्टेटमेंट एक तशखीसी आले की तरह है, एक्सरे की तरह। वो पूछता है, अखराजात कहाँ से लीक हो रहे हैं? क्या मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है? क्या हमारी कीमतें ठीक हैं? बिल्कुल, क्या हमारी कीमतें ठीक हैं? क्या कारोबार चलाने के लिए कर्ज पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जा रहा है? इसके लिए ये स्टेटमेंट मुस्तकबिल में कारोबार की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का एक रोड मैप है। ठीक है। और किसी भी अच्छी कहानी की तरह स्क्रिप्ट के आखिर में कुछ आम गलतियों की फहरिस्त भी दी गई हैं जिनसे बचना चाहिए। सबसे पहली गलती तो यही है कि सिर्फ नेट प्रॉफिट को देखना। जी, ये सबसे आम जाल है। लोग सीधा आखिरी नंबर पर जाते हैं और बाकी पूरी कहानी को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी गलती, यकवक्ती आमदनी यानी वन टाइम इनकम को नजरअंदाज करना। हो सकता है कंपनी ने कोई पुरानी फैक्ट्री बेची हो जिससे इस साल का मुनाफा बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो, लेकिन ये उसके बुनियादी कारोबार की कारकर्दगी को जाहिर नहीं करता। और तीसरी, इंडस्ट्री से मुवाजना ना करना। और एक आखिरी गलती जिस पर स्क्रिप्ट ने बहुत जोर दिया है वो है नोट्स टू अकाउंट्स को ना पढ़ना। सच कहूं तो ये हमेशा बहुत खौफनाक और बोरिंग लगता है। क्या ये वाकई इतना अहम है? ये सिर्फ अहम नहीं, ये शायद सबसे अहम हिस्सा है। अगर इनकम स्टेटमेंट कहानी का खुलासा है, तो नोट्स टू अकाउंट्स उस कहानी के तमाम तफसीलात हैं। ये वो फाइन प्रिंट है जहां तमाम राज छुपे होते हैं। अच्छा, जैसे कंपनी ने आमदनी को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल की, उसके मुख्तलिफ अखराजात की नोयत क्या है, क्या कंपनी का कोई बड़ा कानूनी मुकदमा चल रहा है। IAS और IFRS के तहत तमाम अहम इंकशाफात यहीं होते हैं। तो खुलासा ये है कि इनकम स्टेटमेंट सिर्फ आदाद और शुमार का गोरखधंधा नहीं है। ये किसी भी कंपनी की एक साल की मुकम्मल कहानी है। उसने क्या कमाया, क्या खर्च किया और आखिर में कागज पर क्या बचाया। बिल्कुल। और इस कहानी को पढ़ना सीखने से कोई भी शख्स बेहतर माली फैसले कर सकता है, चाहे वो सरमायाकारी के लिए हो या अपने कारोबार को चलाने के लिए। स्क्रिप्ट ने मुनाफा और नकद रकम के दरमियान बहुत जोर दिया और ये मुझे एक गहरी सोच में डाल गया है। अगर किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट साल बर साल सेहतमंद मुनाफा दिखा रहा हो लेकिन इसके नकद ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हों, तो उसके दीगर मालियाती गोशवारे जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट या बैलेंस शीट उसके मुस्तकबिल के बारे में कौन सी वो अनकही कहानी सुना रहे होंगे।